Hello everyone, myself Jaya Agarwal, Assistant Professor Political Science from SPCGC Ajmer. This is paper first of BA part 3, Representative Western Political Thinkers, and in this video we will talk about the political ideas of Karl Marx, and here comes the historical materialism or economic interpretation of history. So let's start. Dialectical method that regulates the history of society and its development along with materialism is the basic assumption of historical materialism. Marx does not support the divine theory regarding development. According to him, dialectical method and economic factors play the key role regarding progress of the society. All the incidents which had happened in past are the outcome of the changes in economic scenario, and to understand the political system, judicial system better, we should have the knowledge of economic structure. Here mode of production works as a foundation for the economic structure. So according to Marx, there are 6 phases of history, and which are based on the means of production. That's mean as the changes happen to the means of production, the our whole society, whole our structure changes according to the changes in the means of production. So on the basis of means of production, there are 6 phases, and there have been 6 phases. 4 phases have been happened, and 2 phases are uh, about to come in the near future. So let's see what are these 6 phases. First one is primitive communism. This is the first phase of the history, and here means of production were quite simple, and people here were used to live a collective life, and it was the life, we can say that, like a life in forest or jungle. And the most important thing is that there was total equality and freedom was there to each and every person, and because of this feature there was no exploitation. Second one is slave society. Here it is the second phase of the history, and here changes in the means of production happen, and equipments were there, and agriculture equipments were invented, and agriculture was the main economic scenario was there. People used to start farming, and just because of that, here comes the origin of personal property. Division of labor was started. The society divided into two classes. First one is slave, second one is owner who has occupied the equipments and land for agriculture, and it was the beginning of the exploitation of the poor section of the society. And the most important thing is that in the second phase there was origin of the state. The most important incident in the history happened here, and the state always helped those persons who exploit the poor. So the origin of the state, the cause behind the origin of the state was to help those persons who exploit the poor. That's mean state always help the rich section of the society according to Marx. Third one is feudal society. This is the third phase of the history, and here again changes were there in the means of production, and this society was divided into two sections. First one was farmers, and second one was owner of land, and the situation of farmers was quite similar to the slaves regarding exploitation, as they also did not have the means of production. So there was the similar exploitation, almost similar exploitation was there for the farmers. Next one is capitalist society.
This was the fourth phase of the history, and here again changes in the means of production and industrial revolution happened there. So the beginning of the machines and factories started here, and it was the origin of capitalism. Two sections were there. First one was capitalists or owner of these means of productions, that is machines, factories, land, and second one was the labor class, and exploitation was there. And in the end, according to Marx, when the exploitation is at its extreme, then the poor class or labor class has no choice beside that accept that revolution, and the revolution takes place. Next one is dictatorship of proletariat. Because of revolution of fourth phase, the dictatorship of proletariat will be established. That's mean it will happen in, it will be established in the future, and this section will keep the powers in his hands and will destroy the capitalism. And last and sixth phase is communist society, and according to Marx, this was the phase of total equality, no exploitation, because it will be stateless and classless society. आज हम लोग बात करेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद, या जिसे हम लोग इतिहास की आर्थिक व्याख्या के नाम से भी जानते हैं। तो मार्क्स का ये मानना है कि जो द्वंद्वात्मक पद्धति होती है, ये हमारी हिस्ट्री को, हमारे समाज के इतिहास या समाज के विकास को ये नियमित करती है, और इसी के साथ में जो हमारे हिस्टोरिकल जो मटीरियलिज्म है, ऐतिहासिक भौतिकवाद है, उसका मुख्य तत्व होता है हमेशा भौतिकवाद, दैट इज़ मटीरियलिज्म। तो सरल शब्दों में जो हमारे ऐतिहासिक भौतिकवाद की प्रक्रिया है, जिसे हम लोग हमारे प्रीवियस वीडियो में हम लोग कर चुके हैं, ये हमारे ऐतिहासिक भौतिकवाद को निर्धारित करती हैं। इसीलिए मार्क्स है वो राज्य या समाज के विकास के संबंध में दैवी सिद्धांत को सपोर्ट नहीं करते हैं। उनका ये मानना है कि जो आर्थिक तत्व होते हैं, आर्थिक तत्व और द्वंद्ववाद की प्रक्रिया, यह एक समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसका मतलब होता है कि समाज के अंतर्गत अब तक हिस्ट्री में जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं, उन सब के पीछे कारण रहा है आर्थिक तत्व। मतलब आर्थिक तत्व इतिहास की घटनाओं को निर्धारित करते हैं, और आर्थिक कारणों के कारण से इतिहास की घटनाएं घटित होती हैं। इसीलिए यदि हमें किसी भी समय का राजनीतिक व्यवस्था या हमें उसकी न्यायिक व्यवस्था को हमें अच्छे तरीके से समझना है, तो हमें उस समय की जो आर्थिक ढांचा रहा है, उस समय की जो आर्थिक गतिविधियां या आर्थिक जो पोजीशन रहा है, हमें उसे समझना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। और ये जो आर्थिक स्ट्रक्चर होता है, आर्थिक ढांचा होता है, उसे निर्धारित करते हैं हमारा मोड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब हमारे उत्पादन की पद्धति। तो इसे हम लोग बिल्कुल सरल शब्दों में अगर हम लोग देखें, तो सबसे पहले आपका आ जाता है उत्पादन की पद्धति या उत्पादन के साधन। उसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट आ जाता है लेवल, जो कि हमारे उत्पादन के साधन हमारे आर्थिक ढांचे को निर्धारित करते हैं, और हमारा जो आर्थिक ढांचा होता है वो हमारे राजनीतिक व्यवस्था या जुडिशियल सिस्टम को निर्धारित करते हैं। तो हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की आर्थिक व्याख्या का अर्थ है कि इतिहास में जितनी घटनाएं घटित होती हैं, उन सबके पीछे जो आर्थिक कारण होते हैं वो मुख्य भूमिका अदा करते हैं। जैसे ही हमारे आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन आता है, वैसे ही इतिहास बदल जाता है। तो इस आधार पर जो मार्क्स हैं, उन्होंने हिस्ट्री के 6 फेजेस या 6 चरण या 6 युग बताए हैं, जिनमें से 4 चरण अभी तक आ चुके हैं और 2 चरण भविष्य में आएंगे। तो हम लोग इन 6 फेजेस को हम लोग देख लेते हैं। पहला आ जाता है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, मतलब आदिम साम्यवाद। आदिम साम्यवाद जो कि हमारे इसका पहला चरण है इतिहास का। यहाँ पर हमारे उत्पादन के साधन काफ़ी ज़्यादा सिंपल थे,
जो यहाँ पर लोग थे वो बिल्कुल एक कलेक्टिव लाइफ, सामूहिक जीवन व्यतीत करते थे, क्योंकि उनका काम था शिकार करना या कंदमूल ये जो भी एकत्रित करना, ये सब था। और औजार भी उनके काफ़ी ज़्यादा सिंपल थे। तो इस वक्त वो सामूहिक जीवन व्यतीत करते थे, लाइक जंगल में वो लोग रहते थे। पूरी तरीके से इस वक्त समानता और स्वतंत्रता थी, हर सभी एक दूसरे के बिल्कुल बराबर थे, इसीलिए किसी भी प्रकार का शोषण नहीं था, कोई भी किसी का भी शोषण नहीं करता था। पूरी तरीके से समानता और हर व्यक्ति को स्वतंत्रता थी। सामूहिक जीवन व्यक्ति व्यतीत करते थे और उत्पादन के साधन बिल्कुल सरल थे। तो ये हमारा जाता है आदिम साम्यवाद। इसके बाद में हमारा सेकंड फेज आ जाता है, दूसरा चरण आ जाता है, जो कि आ जाता है दास युग या दास समाज आ जाता है। क्योंकि इस वक्त जो हमारे उत्पादन के साधन हैं वो बदल जाते हैं। अब हम लोगों के पास में औजार आ जाते हैं, हम लोग कृषि कार्य करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही हम लोग ये करते हैं, आप ये देखिए यहाँ पर निजी संपत्ति और जो श्रम विभाजन है ये दोनों ही आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो समाज है वो दो क्लासेस में डिवाइड हो जाता है, एक होता है स्लेव, एक होता है ऑनर। ऑनर मतलब मालिक, जो कि इस वक्त एग्रीकल्चर के या लैंड के या इन इक्विपमेंट्स के मालिक होते हैं। स्लेव मतलब हमारी समाज का वह दास वर्ग जिसके पास में ये सब साधन नहीं है, इसीलिए जो ओनर, जो हमारा स्वामी वर्ग है, वो दास वर्ग का शोषण करता है। और इस चरण में राज्य अस्तित्व में आता है। और राज्य की विशेष बात यह है कि वो हमेशा जो रिच सेक्शन, हमारे समाज का जो अमीर वर्ग है, उसकी सहायता के लिए अस्तित्व में आता है, ताकि वो पुअर वर्ग का, गरीब वर्ग का अधिक से अधिक शोषण कर सके। थर्ड आ जाता है फ्यूडल सोसाइटी आ जाती है, हमारा सामंतवादी समाज आ जाता है। थर्ड फेज है ये हिस्ट्री का। और यहाँ पे अगेन हमारे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के साधन है, वो बदल जाते हैं। दो सेक्शन अगेन हमारे पास में यहाँ पे रहते हैं। ये होता है हमारे पास में किसान और सामंत वर्ग। किसान और सामंत वर्ग, इसमें जो सामंत वर्ग होता है ये किसान का शोषण करता है, क्योंकि यहाँ पर जो उत्पादन के साधन होते हैं उनका जो स्वामी होता है वो स्वामी वर्ग होता है, सामंत वर्ग होता है। इसीलिए वो जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, उनका अधिक से अधिक वो शोषण करते हैं, क्योंकि किसान वर्ग के पास में अपने उत्पादन के साधन नहीं होते हैं। जिस तरीके से दास वर्ग के पास में उत्पादन के कोई भी साधन नहीं होते हैं, उसी तरीके से सामंत वर्ग में किसानों के पास में कोई भी उत्पादन के साधन नहीं होते हैं। नेक्स्ट फेज आ जाता है कैपिटलिस्ट सोसाइटी आ जाता है, पूंजीवादी समाज आ जाता है, जो कि हमारी हिस्ट्री का, इतिहास का चौथा चरण है। और इस वक्त फिर से हमारे उत्पादन के साधन है वो बदल जाते हैं। यहाँ पर हमें बिल्कुल ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो 6 फेजेस हैं, 6 चरण हैं, ये इसलिए घटित होते हैं, इसलिए ये एक के बाद एक आते हैं, क्योंकि हमारे उत्पादन के साधन बदल जाते हैं, तो हमारी पूरी व्यवस्था बदल जाती है। फोर्थ फेज में जब हमारे उत्पादन के साधन हमारे बदलते हैं, तो यहाँ पर हमारे औद्योगिक क्रांति इसका मेन कारण होता है, जिसकी वजह से जिसके कारण से मशीन है, फैक्ट्रीज हैं, इनका उद्भव होता है। और यही कारण है कि यहाँ पे कैपिटलिज्म, पूंजीवाद अस्तित्व में आता है। दो सेक्शन हमारे समाज के बन जाते हैं, एक होता है पूंजीपति वर्ग होता है, जो कि इन उत्पादन के साधनों के स्वामी होते हैं, और दूसरा लेबर क्लास होता है, जिनके पास में ये सब उत्पादन के साधन नहीं होते हैं, इसीलिए वे कैपिटलिस्ट हैं। पूंजीवादी जो तत्व हैं उनके काफ़ी ज़्यादा शोषण के शिकार होते हैं। और एक समय ऐसा आता है, जो मार्क्स है उनका ये मानना है कि एक समय ऐसा आता है जबकि ये शोषण इस हद तक बढ़ जाता है कि अब जो लेबर क्लास है, जो मजदूर वर्ग है, वो पूंजीवादी वर्ग के विरुद्ध क्रांति कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरियट, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। जैसे ही मजदूर वर्ग है वो पूंजीवादी वर्ग के विरुद्ध क्रांति कर देता है, इतिहास का 5वां चरण आ जाएगा, जिसे हम लोग सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद कहते हैं। सॉरी। इस वक्त जो सर्वहारा वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उसका साम्राज्य स्थापित होगा। ये सभी शक्तियाँ अपने हाथों में रखेंगे और इस तरीके से ये पूंजीवाद को पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे। और इसके बाद में इतिहास की छठी व्यवस्था आएगी, जिसे कि हम लोग साम्यवादी समाज कहते हैं। ये इतिहास का लास्ट और 6th चरण रहेगा। और मार्क्स के अनुसार ये राज्य वर्ग और वर्ग विहीन समाज होगा। इस वक्त ना तो कोई वर्ग रहेगा, ना ही राज्य अस्तित्व में रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई भी शोषण नहीं होगा, पूर्णतः समानता की स्थिति रहेगी। तो ये मार्क्स ने इस तरीके से ऐतिहासिक भौतिकवाद का अपना सिद्धांत दिया है।
That's all for today from my side. Thank you very much.